हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी थर्ड सेक्शन, थर्ड यूनिट लैटिस थ्योरी। Definition of partial ordered set. Let S be a non-empty set. A relation denoted by this symbol in S, yeah, defined on S. A relation in S is called partial ordering in S if it satisfies the following properties. First property क्या है? A related to A for all A belongs to S. This relation is reflexive. Second property, if A related to B and B related to A implies A equal to B, antisymmetric. Last, if A related to B and B related to C implies A related to C. Transitive property, for all A, B, C belongs to S, then the set S with this relation is called coset, partially ordered set. For example of the coset, let X be a non-empty set. S is the power set of X. मतलब क्या है? S में क्या है? It is the collection of all subsets of X. Define a relation in S as follows. Let A B belongs to S. Then we say that A is related to B if B is subset of A. ठीक है, रिलेशन ऐसे डिफाइन है, A B हमारे पास बिलोंग्स टू S है, मतलब A और B X के क्या है? सबसेट्स हैं. A B से रिलेटेड होगा अगर B is subset of A. Now we will prove it is this relation is partially ordering. You know, हर एक set, every set is subset of itself. Therefore, we can write A related to A for all A belongs to S. Next, let A B belongs to S such that A related to B and B related to A. Now A related to B implies क्या है? B subset of A, and B related to A implies A subset of B. तो therefore क्या हो जाएगा? A equal to B. Similarly आपकी ट्रांजिटिव हो जाएगी. Let A B C belongs to S such that A related to B and B related to C. This implies B is subset of A and C is subset of B. तो अब ये दोनों से हमारे पास क्या होगा? C is subset of B, B is subset of A. कंक्लूजन ये निकला, that is C is subset of A. So this implies A related to C. Transitive, hence this is the partially ordering on S and this is coset, partially ordered set. ठीक है, ऐसे ही आप सेकंड एग्जांपल आपका क्या है? S is the set of natural number. A relation is defined as अगर A और B two natural numbers है, A related to B if A divides B. मतलब हम ये लिख सकते हैं 2 is greater than 4. 2 is related to 4 because 2 आपका 4 को डिवाइड करता है. यहाँ पे ये ग्रेटर दैन इक्वल टू नहीं है, दिस इज द रिलेशन. 2 इज, आप इस तरह से बोलेंगे हम 2 related to 2 related 4. 2 divides 4. ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं ये सारी प्रॉपर्टी, दिस रिलेशन सेटिस्फाई all properties of partially ordering. Therefore
order set. List upper bound of partially ordered set. Let S आपका क्या है? दिस इज दी let S is a partially ordered set, coset. Okay. A is non-empty subset of S. ठीक है. Then an element U belongs to S. If exist, अगर एग्जिस्ट कर रहा है इस तरह का एलिमेंट, इज कॉल्ड, सेम आपकी अपर बॉन्ड वाली डेफिनेशन है, दिस इज़ द अपर बॉन्ड ऑफ सेट ए. मतलब क्या कहता है, कोई एलिमेंट एस का अगर एग्जिस्ट कर रहा है उस वो अपर बॉन्ड होगा सेट ए का. कब होगा अपर बॉन्ड? इफ़ यू इज़ रिलेटेड टू for all A belongs to A. ठीक है. then this is the U is upper bound of set A. ठीक है. and V is another, and V हमने another upper bound ले लिया of set A का. ठीक है. then U is said to be least upper bound if V is related to U. ठीक है. हम दोबारा से करते हैं. S आपका पार्शियल ऑर्डर सेट है, A सबसेट है S का. ठीक है. an element U belongs to S if exist is LUB of A, लिस्ट अपर बॉन्ड ऑफ A. इफ फर्स्ट क्या है, ये इसका अपर बॉन्ड हो. सेकंड, अगर V कोई अनदर अपर बॉन्ड है, A का, तो क्या हो, ये लिस्ट होता है. देन V इज रिलेटेड टू U. अब आपको पता है, एज यू नो, ये तो लिस्ट अपर बॉन्ड की वजह से आया, और U इज़ ऑल्सो अपर बॉन्ड, U भी अपर बॉन्ड है. ठीक है. अगर U इज़ द लिस्ट अपर बॉन्ड फॉर A, तो बस आपका फाइनली यही कंक्लूजन हुआ. हम यही कहेंगे कि ये आपकी डेफिनेशन हो गई. ठीक है. अच्छा, ये आपका है यूनिकनेस. आप शो कर सकते हैं यूनिकनेस ऑफ लिस्ट अपर बॉन्ड. अगर कोई दो लिस्ट, अगर हम कहते हैं U एंड V बिलोंग्स टू S, भी टू लिस्ट अपर बॉन्ड्स हैं किसके, सेट A के. ठीक है. अब U लिस्ट अपर बॉन्ड है तो अपर बॉन्ड भी होगा. ठीक है. तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, U इज रिलेटेड टू V, एंड V जो है वो लिस्ट अपर बॉन्ड है तो अपर बॉन्ड भी होगा. तो दिस इम्प्लाइज U इक्वल टू V बाय एंटी सिमेट्री प्रॉपर्टी. ठीक है. तो जो आपका लिस्ट अपर बॉन्ड होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है. सिमिलर आपकी डेफिनेशन है GLB की, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड की. ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड में पहले आप लोअर बॉन्ड देखें. A नॉन एम्प्टी सबसेट है पार्शियल ऑर्डर सेट S का. देन एन एलिमेंट V या फिर L बिलोंग्स टू S इफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड लोअर बॉन्ड. किसका, A का, सेट A का. इफ A related to L for all A belongs to S.
एंड लीस्ट अपर बॉन्ड की क्या हो जाएगी, एल इज़ लीस्ट अपर बॉन्ड। लीस्ट अपर बॉन्ड कब होगा, फर्स्ट ये क्या हो, सॉरी लीस्ट अपर बॉन्ड नहीं, ग्रेट, एल इज़ ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, फर्स्ट एल क्या हो, लोअर बॉन्ड हो, मतलब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो। सेकंड क्या हो, इफ़ B belongs to S is another lower bond of A, then ये क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, देन L is related to V, ठीक है, देन L is related to V। तो ये आपकी GLP की डेफिनेशन है। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है लैटिस। लेट दिस बी अ पार्शली ऑर्डर्ड सेट। ये क्या है, एक पोसेट है, मतलब क्या है, दिस इज़ दी एल क्या है, एक सेट है विद पार्शली ऑर्डरिंग रिलेशन ऑन इट, ठीक है। देन एल इज सेट टू बी लैटिस इफ फॉर एवरी A B belongs to L, कोई दिस सबसेट, दिस ये सबसेट किसका बना, L का, इसका क्या हो, LUB भी एग्जिस्ट करता हो, इट हैज़ LUB, इसका LUB भी एग्जिस्ट करता हो और इसका GLB भी एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। मतलब क्या है, LUB को हम डिनोट करेंगे इस सिंबल से, ठीक है, एंड GLB विल बी डिनोटेड बाय दिस सिंबल। बोथ एग्जिस्ट देन दिस सेट, दिस पार्शली ऑर्डर्ड सेट इज कॉल्ड लैटिस। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा था कि ये क्या होता है, दिस इज द पार्शली ऑर्डर्ड सेट वेयर S क्या है, पावर सेट ऑफ एक्स, एक्स आपका नॉन एम्प्टी सेट है। और रिलेशन कैसे डिफाइन होती है, A रिलेटेड टू B इज, नाउ वी विल प्रूव इट इज़ लैटिस। ये पार्शियल ऑर्डर सेट को हम लैटिस प्रूव करेंगे। लेट हम लेंगे कोई दो एलिमेंट्स S से, ठीक है, यहाँ पे आप S की जगह L भी लिख सकते हैं, ओके। अब हमें क्या शो करना है कि इसका जो LUB है, LUB ऑफ दिस सेट एग्जिस्ट, ठीक है। अब आप देखें, सिंस A is subset of A union B and B is subset of, and B is subset of A union B, तो this implies A union B is related to A, है ना, and A union B related to B, तो this implies ये क्या बन गया, अपर बॉन्ड ऑफसेट दिस। अब आप क्या शो कर देंगे, इसे लिस्ट अपर बॉन्ड भी शो कर देंगे, तो LUB क्या बनेगा, बहुत इजी है, सेट थ्योरी से रिलेटेड है, A यूनियन B। सिमिलरली यू विल शो GLB ऑफ दिस सेट इज A इंटरसेक्शन B, हैंस देयरफॉर L इज, L जो है वो क्या हो जाएगा, हैंस देयरफॉर L इज लैटिस, ओके। अभी आपने हमने किया था सेट ऑफ नेचुरल नंबर किया था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर द रिलेशन डिवीजन इज पोसेट। आप ये शो करेंगे दिस इज ऑल्सो लैटिस, ठीक है, ये भी लैटिस बनता है। अगर हम A और B कोई दो नेचुरल नंबर लेते हैं, देन GLB ऑफ AB जो आएगा वो तो हमारे पास आएगा
GLB जो होगा वो क्या होगा, GCD, ठीक है। GLB जो आएगा वो क्या आएगा, GCD ऑफ AB, ओके। यानी कि ये आप ये प्रूव खुद करेंगे। और LUB जो होगा इस सेट का वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ AB। LUB क्या होगा, एलसीएम ऑफ AB एंड GLB इज इक्वल टू दिस। देन दिस सेट यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर द रिलेशन क्या थी, A रिलेटेड टू B इफ A डिवाइड्स B। तो ये आपका क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या अंडर दिस रिलेशन क्या बन जाएगा, कोसेट तो होता ही है। अगर इसका 2 एलिमेंट्स के सेट का LUB क्या आ रहा है, GCD, और जो आपका GLB है वो क्या है, LCM है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, दिस इज़ दी लैटिस, ठीक है। तो आप ये खुद से इसका प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 एग्जाम्पल हो गए हैं लैटिस के।